कल हमने 2 श्लोकों का पुनरावर्तन देखा था, आज आगे करते हैं। नैसर्गिक करोगी? હા રાજા, ધન્યવાદ, પ્રણામ રાજા। હવે આની પહેલા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આજ્ઞા કરી કે સંગ તો હંમેશા ત્યજવા યોગ્ય છે, અગર એ ન ત્યાજી શકાય તો એ આપણું કર્તવ્ય છે કે સારો આપણે સંગ કરવો જોઈએ, એમ આપણે આગળના શ્લોકમાં સમજ્યા। હવે આમ જે ગૃહ શરૂઆતમાં ત્યાજ્ય જે અંશનું નિરૂપણ કર્યું એ આપણે સમજાવ્યું, અને એ સ્વરૂપના વિચારથી ભક્તનું કર્તવ્ય રૂપ જે સત્સંગનો ઉપદેશ હવે મહાપ્રભુજી આપ્યો આપણને, અને એના વિકલ્પ રૂપ જે છે કે કૃષ્ણાર્થમ તત્પ્રયોજિત પક્ષનું હવે નિરૂપણ કરશે। એટલે અગર આપણે ત્યાગ ન કરી શકીએ તો આપણે જે આપણો સંગ કે આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ ઠાકોરજીના માટે આપણે જીવવું જોઈએ, એ હવે મહાપ્રભુજી સમજાવે છે। અને અગર હવે એમ શંકા થાય કે આ વિકલ્પ કેમ કહી રહ્યા છે, તો ગૃહત્યાગ પૂર્વક સત્સંગ અને ગૃહ સ્થિતિ પૂર્વક ભગવત સેવા આ બંને કલ્પમાંથી જે જીવને જે રૂચે એ કરવું, એવા આશયથી વિકલ્પને સમજવું, અથવા તો ભગવત સેવા ઘરમાં ન થઈ શકે તો ગૃહ સ્થિતિને ન બની શકે તો પછી બીજભાવ દ્રઢ થાય અને પછી ગ્રહ ત્યાગ કરવો। આમ આ બંને અવસ્થાના અધિકાર વિવેક રાખીને ગૃહ સ્થિતિ અથવા ગૃહ ત્યાગ નો જ કેવળ વિકલ્પ છે। તો હવે આવી બધી જિજ્ઞાસા થાય તો એના આપણે શું સમજવું જોઈએ? તો એનું સમાધાન સમજવું જોઈએ કે પ્રથમ કલ્પમાં તો ભગવદીયના સાથે સત્સંગ કરો, અને જે ભગવત સેવા જ આપણે કરવી જોઈએ, અને એમાં કોઈ જ અધિકાર તારતમ્ય કે ફળ તારતમ્ય, એટલે એમાં કોઈ ડિફરન્સ નહીં આવે, જે ફળ કથાથી મળશે એ જ ફળ સેવાથી મળશે। અને બીજા કલ્પમાં ભગવત સેવાની મુખ્યતા રાખીને એના અનુકૂળ આપણે ઘરમાં સ્થિતિ અથવા અગર પ્રતિકૂળ ઘર હોય તો એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, એ ઉપદેશ આપણે સ્વીકાર કરીએ તો પછી ગૃહ સ્થિતિ પૂર્વક ભગવત સેવા મુખ્ય કલ્પ સિદ્ધ થાય છે, અને ગૃહ ત્યાગ પૂર્વક સત્સંગ ગૌણ કલ્પ અથવા અર્થાત અનુકલ્પ સિદ્ધ થાય છે। તો એમાં આપણે કયો આશય પ્રમાણિક જાણવો? તો એમાં બે પક્ષ છે એમાં। તો પહેલો પક્ષ એવો, એમાં પૂર્વ પક્ષમાં એમ સમજાવે છે કે જેમ આપણને સેવાયમ કથાયમ ભક્તિવર્ધીમાં કીધું ને અન્ય વચનો બી આમાંથી એમ સમજાવી રહ્યા છે કે સત્સંગ અને ભગવત ચરણના વિનમાં એ બંને સેમ જ છે, એટલે બંને તુલ્ય જ આપણે ગણવું જોઈએ। આમ ભગવત સેવા અને ભગવદીય સંઘના વચ્ચે કોઈ બી તારતમ્ય છે જ નહીં, બંને ઇક્વલ જ છે। અને જે વેરસ બીજો પક્ષ છે, જે ઉત્તર પક્ષ છે, એ એમ બતાવે છે, એ બહુ બધી મતલબ આપણને એવી રીતે સમજાવે છે કે સેવાયંબા કથાયંબા જે વચન છે એમાં ભગવત સેવા કથાનો જે સમુચ્ચય, એટલે બંને સેવા અને કથા એ બંનેનો જે સમુચ્ચય છે એ ઉત્તમ મનાય છે, અને કેવળ સેવા એ કેવળ કથા એ કોઈમાંથી એક એ મધ્યમ પક્ષ ગણાય છે। અને અગર સેવા કથા ઘરે જ પોતાના નભતી હોય તો તેનાથી ઉત્તમ તો બીજું શું જણાય? એ તો ઉત્તમ જ કલ્પ છે, પરંતુ અગર એ બંને નથી નભી રહી કરે તો ભગવત કથાર્થ ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ, કાં તો પછી ભગવત સેવા ન થવાથી બીજ ભાવના દ્રઢ થયા પછી ઘરનો ત્યાગ કરીને ભગવદીયાના સાથે ભગવત કથાનો અવલંબનનો ઉપદેશ આ ઉત્તર પક્ષમાં સમજાવે છે। પછી બીજી રીતે ઉત્તર પક્ષ એમ પોતાની વાત સમજાવી રહ્યા છે કે જે સેવ્ય સ્વરૂપ છે એ બ્રહ્મવાદના અનુસાર સાક્ષાત સ્વરૂપ જ મનાય છે। આથી જે નિજ સેવ્ય જે સ્વરૂપના ચરણારવિંદ તો આધિદૈવિક જાણવા જોઈએ, અને એના પર દ્રઢ આશ્રય જાણવો જોઈએ। આથી અને જે કથા પક્ષ છે એ આધિ ભૌતિક ચરણારવિંદ છે એમ સમજવું જોઈએ। જે ત્રીજો પક્ષ છે એવી રીતે મતલબ ત્રીજી વાત ઉત્તર પક્ષ એમ રીતે સમજાવે છે કે ગૃહ સ્થિતિ પુરુષ માટે જે સ્ત્રી સંઘ છે, કાં તો પછી પુરુષ માટે સ્ત્રીનો સંઘ છે, વાઇઝા વર્સા, એ દોષ મહાન બાધક માન્યો છે। પરંતુ એમાં બી
કેવી રીતે તમે સંગ કરો છો એના ઉપર આધાર છે કે કોઈ ઉત્તમ અધિકારી છે એ ભગવત સેવાના સહયોગી ભાવથી કોઈ સંગ કરે તો એ સારો કહેવાય. કોઈ મધ્યમ અધિકારી જે ત્રિવર્ગના સાધનાના સહયોગી ભાવથી અગર કરે તો એ મધ્યમ કહેવાય, અને જે અધમ અધિકારી કામનો ઉપયોગના સહયોગીની ભાવથી કોઈ કરે તો એ અધમ કહેવાય, અને જે અધમ અધિકારી હોય તો કેવલ ધન લોલુપ હોય ને સ્ત્રી સંગ અથવા પુરુષનો સંગ સ્ત્રી કરે તો એ તો અધમ અધિકારી જ છે. આથી સ્ત્રી પુરુષ સંઘની નિંદા પણ આપણને ગીતાજીમાં પણ કર્યું છે. એનો શ્લોક સમજાવે છે કે સંગા સંગ જાયતે કામ કામત ક્રોધો વિજાયતે ક્રોધાત ભવતિ સમોહ. આ વચનમાં બી કહેવાય છે કે સંગથી કામ થાય છે, કામથી ક્રોધ થાય છે, ક્રોધથી મોહ થાય છે. આમ આખી સાયકલિકલ પ્રોસેસ છે, એટલે આમ સંગ ન જ કરવો જોઈએ. એમ ગીતાજીમાં પણ ઠાકોરજી સ્વયં જ આજ્ઞા કરે છે. ભાગવતજીમાં પણ ભાગવત સેવા પરાયણ ભગવદીયના ગૃહ સ્થિતિને જે મહાપ્રભુજી તો મુક્તિ તેવું ઉત્તમ, એટલે મુક્તિથી પણ ઉત્તમ કહીને વખાણી રહ્યા છે. આથી જે છે એ આ પ્રભુના જે આદિદૈવિક સાક્ષાત પ્રભુ છે એના ચરણારવિંદનો દ્રઢ આશ્રય રાખવા માટે અગર ગૃહના સ્વરૂપને આપણે કોઈ પણ હિસાબે નિંદાત્મક ન સમજવું જોઈએ. એટલે ગૃહ ત્યાગ છે એ ઉત્તમ નથી એમ સમજાવે છે. અને ભાગવતજીમાં એમ પણ કીધું છે કે જે ભગવત સેવા રહિત જે હાથ હોય એ તો શવ સમાન જ સ્વહસ્ત છે, એટલે શવના હસ્ત બરાબર અપવિત્ર માનવા યોગ્ય છે. આમ સેવાનું આટલું મહત્વ છે. પછી કોઈ એમ શંકા કરે કે તમે આટલો બધો મતલબ આમાં એક આર્ગ્યુમેન્ટ આપી રહ્યા છે કે ગૃહ ત્યાગનો આટલો બધો તમે વખાણ કરો છો તો યોગાદી ઉપાયથી દેહ ત્યાગનું વખાણ કેમ નથી કરતા, તો એનાથી શું સિદ્ધ થાય છે? તો એમાં એમ સમજવું જોઈએ કે જેમ ઘર છે એમ દેહનું સ્વરૂપ પણ નિંદાત્મક જ માનવું જોઈએ, પણ આ બીજા માર્ગની વાત છે. આથી જે નિંદાત્મક હોવાથી ગૃહ ત્યાગ કરીને સત્સંગ કરવું જોઈએ. એમ જે દેહથી સાધ્ય જે સત્સંગ છે એને છોડીને અંશાદી જે કઠોર વ્રત દ્વારા મુક્તિ કેમ ન પાવો, એમ કોઈ અગર આર્ગ્યુમેન્ટ કરે તો આપણે એમ સમજવું જોઈએ કે મુક્તિથી પણ વધારે ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. આથી જે સત્સંગથી તો કેવલ શ્રવણ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણમાં જીવાત્મા વગેરેમાં જ ભક્તિ પ્રગટ થાય છે, પણ સાક્ષાત જે ભગવત સેવાના કારણે તો આખું દેહ ઇન્દ્રિય પ્રાણ અંતઃકરણ આત્મા અને સકલ આત્મીય પદાર્થમાં જે ભગવત સંગ ઠાકોરજીનો સ્પર્શ થાય, ભગવાનનો સંગ થાય. આથી જે પણ બધું ભગવત કામ છે બધાથી મતલબ આપણે ઠાકોરજી બધામાં પ્રગટ થાય છે, તો એનાથી ઉત્તમ તો શું હોઈ શકે? કઈ જ નહીં. આમ ચોથી રીતે સમજાવે છે કે ત્રીજી રીતે કે સેવા ઉત્તમ છે. ચોથી રીતે એવી રીતે સમજાવે છે કે ભાગવતજીના એક્ઝામ્પલથી સમજાવે છે કે સત્સંગની શ્રેષ્ઠ તો સત્સંગનું શ્રેષ્ઠ સાધનાનું નિરૂપણ કર્યું. હવે શ્રેષ્ઠ ફળ પણ છે જ સેવાનું, અને પુષ્ટિજીવ માટે તો ભગવત સેવા જ મુખ્ય છે. જેમ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદામાં બી કહેવાય છે કે ભગવત રૂપ સેવા તો તત્સૃષ્ટિ નાન્યતા ભવે, એટલે પુષ્ટિ જીવનું તો પ્રાગટ્ય જ ઠાકોરજીની સેવા માટે થયું છે, તો એનો બીજું શું કામ હોય પુષ્ટિ જીવનું સેવાના અલાવા. અને આ જે પૂર્વ પક્ષ છે જે એવું માને છે કે સેવા અંબા કથા કાં તો સેવા કાં તો કથા એમ જે માને છે એ તો બિલકુલ દોષયુક્ત જ છે એમ ઉત્તર પક્ષ માને છે. અને આમ ભગવત સેવા અને સત્સંગના વચ્ચે કોઈ બી વિકલ્પ નથી, અને જે ગૃહ ત્યાગ છે એ અનુકલ્પ તયા ભગવત સેવાનું જે માને છે એ તો સર્વતા એ મૂળ વચનનો અભિપ્રાય છે. આથી નિષ્કર્ષ એવો નીકળે છે કે ગૃહ સ્થિતિ પૂર્વક જે ભગવત સેવા કરે છે એ મુખ્ય કલ્પ છે, અને ગૃહ ત્યાગ અને જે અગર અનુકલ્પતા એમ સમજવું જોઈએ કે જે ગૃહ ત્યાગ પૂર્વક સત્સંગ છે પણ એ દ્રઢ બીજભાવ થઈ શકે પછી જ એ સત્સંગ માટે ગૃહ ત્યાગ કરી શકે. અને
અને જે અગર એને ગ્રહમાં જ બધું શક્ય હોય તો ઉત્તમ, અને ઉત્તમ તો એ જ છે કે ભગવત સેવા ગ્રહમાં જ કરે, બધા સગા સંબંધીઓ સાથે મળીને. અને અગર એ શક્ય ન હોય તો બીજ દ્રઢ થાય પછી કૃત્યાપૂર્વક સત્સંગ કરી શકે. આથી હવે આગળના શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી ગૃહ સ્થિતિ પૂર્વક ભગવત સેવાનો ઉપદેશ આપે છે કે કૃષ્ણથમ તત્પ્રયોજિત કૃષ્ણ સંસાર મોચક, એટલે કૃષ્ણના માટે જ, અગર કૃષ્ણ જ બધે કૃષ્ણ સંસારનું મોચક છે. આથી બધી જ જે આપણું કાર્ય છે એ કૃષ્ણથી પ્રવૃત્ત થઈને જ ચાલવું જોઈએ. આગળનો શ્લોક અનુકૂલે કલત્રાદો વિષ્ણુ કાર્યાની કારયેત ઉદાસીની સ્વયં કુર્યાત પ્રતિકૂલે ગૃહમ ત્યજેત તત્યાગે દૂષણમ નાસ્તિ યત કૃષ્ણ બહિર્મુખા. એટલે અગર કોઈ બી આપણા રિલેટિવ્સ, જેમાં જેવી રીતે પત્ની, વહુ, બહેન, બેટી, પુત્ર, પિતા, ભાઈ આદિ જે બી બંધુ બાંધવ, અને એમાં ઇન્ક્લુડ નોકર ચાકર બી આવી જાય છે, એ જે બી ઘરમાં રહે છે, અગર કોઈ એ બધામાંથી કોઈ ભગવત સેવા અનુકૂળ હોય તો એમને વિષ્ણુ કાર્ય અથવા તો ભગવત સેવા અથવા તો પરિચર્યા એમની જોડે કરાવી જોઈએ. એમાંથી કોઈ ઉદાસીન હોય તો એમને ભગવત સેવાર્થ માટે કોઈ કાર્ય આપણે સોંપવું ન જોઈએ, પોતે જ કરવું જોઈએ. અને અગર અને અગર કોઈ એ વિરોધ કરતો હોય, કાં તો એ આપણને કોઈ બાધા કાં તો પ્રતિબંધ કોઈ કરતું હોય તો એમની જોડે કોઈ બી સેવાનું કાર્ય ન કરવું જોઈએ, પણ એમનો પરિત્યાગ કરવું જોઈએ. તો અગર એવું થાય કે આપણે એનો પરિત્યાગ કરીશું તો આપણને દોષ નહીં લાગે, તો એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુના બહિર્મુખ જીવને તો પરિત્યાગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો શાસ્ત્રીય અપરાધ નથી લાગી રહ્યો. આપણને જે એમ સમજાવી રહ્યા છે ટીકામાં કે આપણને કોઈ એવું શંકા થાય કે ઘર પરિવારના લોક ભગવત સેવા અનુકૂળ છે કે નહીં, એનું આપણને જ્ઞાન કેવી રીતે થાય, તો એનું સમાધાન આપણને સર્વનિર્ણય નિબંધમાં મહાપ્રભુજી આપી જ રહ્યા છે કે વિક્ષેપાદાત અથવા શક્ત્યા પ્રતિબંધાદિપી ક્વચિત અત્યાગ્રહે પ્રવેશેવા પરપીડાદિ સંભવે. એટલે કોઈ વિક્ષેપ, કોઈ સ્થિતિમાં અગર કોઈ વિક્ષેપ, અશક્તિ, પ્રતિબંધ, અત્યાગ્રહ પ્રવેશ અને પરપીડા, આ જે 5 દોષ છે એ અગર જેનામાં હોય અને તો એના જોડે સેવા ન કરાવી જોઈએ. પણ આ 5 અગર દોષ નથી એનામાં અને અનુકૂળ છે એ સેવામાં, તો એની જોડે સેવા કરાવી જોઈએ, એમ આપણને સમજાવે છે. પછી અહીંયા જે અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે વર્તમાન સમયનું બી એક્ઝામ્પલ આપીને આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે અગર પત્ની કાં તો પુત્ર જે પોતે નથી કમાઈ રહ્યો તો એ પોતાના પતિ કાં તો પિતા જોડે અગર કોઈ સંપત્તિ લઈને સેવા કરતા હોય તો શું એ ઉચિત ગણાશે? તો જે સમજાવી રહ્યા છે કે હા, એ ઉચિત ગણાશે, કારણ કે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં તનુવિત્ત જાતિ સેવા કરવાની કીધી છે, પણ એ અગર સંપત્તિ અગર વિભાજિત ન હોય તો, અને ચૂલો પણ અગર એક જ હોય તો એ ઘર સંપત્તિ વિભાજન નથી થઈ રહ્યું અને બધા બંધુ બાંધવ જ છે. આથી એમનું બી સેવા મતલબ વિત્ત લઈ શકાશે. એમાં તનુવિત્તજાની જે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં કીધું છે એનો બાદ, એ સિદ્ધાંતનો બાદ નથી થઈ ગયો. પણ અગર કોઈ ગોસ્વામી બાલક કે કોઈ બી બીજાની સંપત્તિ, વૈષ્ણવ જેવી રીતે ગોસ્વામી બાલક કોઈ વૈષ્ણવની સંપત્તિ લે તેમાં જરૂરથી તનુવિત્તજાનો બાદ ગણાશે, કારણ કે એ બીજાની સંપત્તિથી લઈ રહ્યા છે. આથી આપણે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પણ અગર કોઈ એવા કોઈ પાખંડી લોક હોય કે એવું કે બ્રહ્મ સંબંધ થયા પછી તો અહંતા મારું શું ને તારું શું, તો એમ તો પછી એ વસ્તુ પાખંડી જ કહેવાય, કારણ કે એમનામાં કોઈક ને કોઈક રીતે અહંતા બાકી જ છે. બીકોઝ જેમ એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યા છે કે પરપત્ની કે પરપત્ની, આપણે કોઈ વૈષ્ણવની સ્ત્રી ગોસ્વામી બાલકના ઘરે નથી જવાની કે ગોસ્વામીની બાલકની પત્ની કોઈ વૈષ્ણવના ઘરમાં નથી આવી જવાની. આથી કોઈ બી સેન્સમાં થોડીક તો અહંતા મમતા બાકી છે જ. આથી આપણે એવું ન કરવું જોઈએ. પણ જેવી રીતે કીધું એમ કે પોતાનું સ્તન ને પોતાનું જ ધનથી ઠાકોરજીની સેવા કરવી જોઈએ, પણ પરવિત્તથી આપણે પરવિત્ત કાં તો પર દેહથી કોઈ બી આપણે કોઈનાથી બી સેવા ન કરાવી જોઈએ. પછી આગળ સુબોધિનીના વચના અનુસાર બી
કહી રહ્યા છે, જે સમજાવી રહ્યા છે કે જે બી આત્મનિવેદી અધિકારી છે એને પોતાના આત્માથી તથા સકલ સ્વ આત્મીય જે બી પદાર્થ છે એની પાસે એ ભગવત સેવામાં એનું સમર્પણ અને વિનિયોગ કરવું જોઈએ. અસ્તુ રાજા. हाँ, सुंदर. प्रणव भाई, करो आगे का श्लोक. हाँ, करो. हाँ, प्रणाम. अभी यहाँ पर अब तक जो पूर्व पक्ष में मतलब अभी तक के जो 3-3.5 श्लोक हैं उसमें जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि वहाँ पर सेवा पक्ष की मुख्यता से या सेवा कथा पक्ष की मुख्यता से बात आने के बाद अभी शरणागति का पक्ष बताते हुए ये 4था और 5वां श्लोक आ रहा है. उसमें प्रथमतया श्लोक के पहले की उत्थानिका में ये बात आ रही है कि एकादश स्कंद का वचन वहाँ पर बताया है कि वहाँ पर शरणागति से भक्ति प्राप्त होती है, भगवद अनुभूति प्राप्त होती है और विरक्ति मिल सकती है. और इसलिए वर्तमान समय में जीव को या जीव के अगले जन्म में भी शरणागति या प्रपत्ति के अधिकार के लिए आगे के श्लोक बता रहे हैं कि किस प्रकार से जीव को वह शरणागति भक्ति रूपता में भी फलित हो सकती है या शरणागति का उत्तम स्वरूप क्या है. तो वो पूरा विवेचन बताने के पहले यहाँ पर थोड़े प्रश्न के रूप में अन्य ग्रंथ के वचनों से और अन्य संप्रदाय के वचनों से प्रश्न के रूप में आ रहा है कि पंचरात्र में भी यहाँ पर षडंग बताया ही हुआ है, वहाँ पर भी शरणागति का स्वरूप कहा है और यहाँ पर भी शरणागति का स्वरूप कह रहे हैं. तो क्या वो दोनों एक ही है? दूसरा प्रश्न वहाँ पर ये आ रहा है कि विवेक धैर्याश्रय का भी जो उपदेश है और यहाँ पर भी जो शरणागति का उपदेश है, तो फिर क्या उन दोनों में भी सामान्यता है? फिर तीसरा प्रश्न रामानुज संप्रदाय के मत में आ रहा है कि रामानुज संप्रदाय में बताए हुए जो नवविध अनुपत्ति है, उनकी जो अनुपत्ति उन्होंने वहाँ बताई है उसकी मान्यता क्या पुष्टि मार्ग में है, और अगर है तो किस प्रकार से है, और नहीं है तो उनका परिहार या उसे न होने का जस्टिफिकेशन किस प्रकार से हम जान सकते हैं. तो इन सभी शंकाओं के उत्तर में ये जो 4था और 5वां श्लोक है जो षड्विध शरणागति का प्रकार बता रहे हैं वो आ रहा है. अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम करिष्यति इति विश्वासो भर्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनैवेद्य कार्य में षड्विधा शरणागति. अभी यहाँ पर भावार्थ और टीका के विवेचन में प्रथम ये बात आ रही है कि उसमें प्रथमतया तो जो शरणागति का प्रकार यहाँ पर बताया हुआ है कि 6 प्रकार से कैसे शरणागति हो सकती है. वहाँ पर प्रभु के अनुकूल होकर रहना और प्रभु के प्रतिकूल जो भी हो उसका त्याग करना, प्रभु ही सब कुछ अपनी इच्छा से करेंगे वो दृढ़ भाव, और वैसे ही सर्वभर्तृतया प्रभु ही है उसके रूप में प्रभु को स्वीकारना, और आत्मनिवेदन और दीनता का वह स्वरूप जो शरणागति और भक्ति के रूप में सिद्ध होगा. ये सामान्य 6 प्रकार से भावार्थ किया है. फिर टीका में उसका विस्तार कर रहे हैं कि विवेक धैर्याश्रय में 4 प्रकार के आंगिक उपाय बता रहे हैं कि किस प्रकार से आश्रय का काया वाणी और मन से हमेशा स्मरण रखना है और भावना करनी है, किस प्रकार से हर परिस्थिति में प्रभु को ही अपना सर्वतया शरणागत जानना है. तो वहाँ पर जो 4 उपाय बताए हैं और यहाँ पर जो 4 उपाय है, यहाँ पर जो 6 उपाय बताए गए हैं, तो दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है उसके बारे में शंका और उसका निराश आ रहा है कि क्या पुनरुक्ति हो रही है, क्या दोनों चीजें एक ही है, या फिर क्या दोनों के बीच में कोई समुच्चय है कि दोनों को साथ में समझकर या साथ में जानकर शरणागति का स्वरूप सिद्ध हो रहा है, या फिर क्या दोनों के बीच में कोई विकल्प है कि वो शरणागति का स्वरूप न सिद्ध हो तो ये शरणागति का स्वरूप जानना, या फिर
इन शंका के ही उसके परस्पर में एक दो और प्रतिशंका के रूप में प्रश्न भी आ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जैसे वेग धैर्याश्रय में अन्याश्रय त्याग बताया है और यहाँ पर भर्तृत्व वरण बताया है कि प्रभु को ही स्वामी जानना, वैसे जो बातें हैं वो एक प्रकार से विधिमुख और निषेध मुख ये दोनों प्रकार से उपदेशतया आ रही है, तो फिर ये दोनों विकल्प तो नहीं हो सकते हैं। तो उन सब का समाधान देते हुए यहाँ पर ये पक्ष बताया है कि जो दोनों बातें हैं उसमें परस्पर साध्य साधक भाव है। मतलब एक स्थिति वो है जो साध्य जीव के लिए जब तक उसका दृढ़ बीज भाव ना हो चुका हो तो उसके पहले की स्थिति हो साधन अवस्था में, उस समय के लिए बात आ रही है। और साधक भाव में फिर जो बीज भाव दृढ़ हो चुका है और वहां पर जो फलोन्मुक्ता में शरणागति का स्वरूप है उस बारे में बात आ रही है। अभी यही साध्य साधक भाव को आगे समझाते हुए और एक दो प्रमाण वचन जे यहाँ बता रहे हैं कि कृष्णाश्रय में भी जैसे बताया है कि जीव अगर विवेक धैर्य रहित भी है और पाप में भी आसक्त है तो भी उसे आश्रय ही रखना है। और वैसे ही विवेक धैर्याश्रय में भी यही बताया कि जब तक जीव की स्थिति उसे सभी परिस्थिति में कुछ अशक्य लग रहा है या कुछ सुशक्य लग रहा है, वहाँ पर जो भी परिस्थिति उसमें उसके सामने आ रही है उसमें आश्रय का भावापन ही उसके लिए सर्वसाधक बताया गया है। और इसीलिए यहाँ पर उसे जो ये जो साधना है वो उसकी यह शरणागति का भाव और इसी प्रकार की उसकी अदृढ़ स्थिति में दृढ़ विश्वास रखना, और उसी के लिए जो पूर्व में कहे 4 विवेक धैर्याश्रय के उपाय और निर्ममता से जो प्राप्त है उसका सेवन करना, वहाँ सिद्धि जीव के लिए यहाँ पे साध्य है। इसलिए इस प्रकार से ये साध्य और साधक भाव का संबंध को यहाँ पर उपपन्न कर रहे हैं जस्टिफिकेशन के रूप में। फिर आगे ये बात बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जी के भगवत गीता के वचन में भी अभी शरणागति का भी स्वरूप कैसे मर्यादा पर्यवसायी होता है और किस प्रकार से भक्ति पर्यवसायी, उसका तारतम्य बताने के लिए अलग अलग प्रमाण वचन जे बता रहे हैं कि प्रथमतया जो भगवत गीता जी के अंतिम उपदेश के रूप में सर्वधर्मान परित्यज्य का वचन जो प्रभु ने कहा है, वहां पर वो अर्जुन जी के लिए मोक्ष पर्यवसायी रूप में आ रहा है। और उसके सामने भागवत जी के 10वें स्कंद में जहाँ पर प्रभु ने ब्रज भक्तों के लिए कहा है कि प्रभु स्वयं उनके स्वामी है, वहां पर वो जो वचन है वो पुष्टिमार्गी शरणागति के रूप में आ रहा है। इसलिए यद्यपि प्रभु के रूप में धर्मी रूप से प्रभु आश्रय बन रहे हैं और साथ ही में वहां पर जो शरणागति प्राप्त हो रही है वो आश्रय का स्वरूप दोनों जगह समान है, पर उसकी फलोन्मुक्ता के रूप में जहाँ पर एक में स्वयं प्रभु ही एक को मोक्ष रूपता बता रहे हैं और दूसरी जो शरणागति है वो भगवत व्यसन रूपता आसक्ति रूपता में फलित हो रही है। इसलिए इस प्रकार से दोनों के बीच में कोई तारतम्य है। और उसी को आगे वापस एकादश स्कंद के भी प्रमाण वचन से बता रहे हैं कि वहां पर व्यसनोत्तर दशा में जब ये प्रकार की शरणागति सिद्ध होती है तो वहां पर जो अदृढ़ जीव की स्थिति है या जो अब तक प्रभु को सर्व आश्रय रूप न समझकर या ऐसी साधन रूप भाव से वो स्थिति नहीं समझनी है, पर वो तो फलोन्मुख भक्ति के भाव में स्थित होती हुई वहां पे स्थिति बताई गई है। इसलिए शरणागति का भी स्वरूप मोक्ष साधिका और भक्ति साधिका के रूप में तारतम्य से यहाँ पर बताया। उसके बाद अभी जो रामानुज मत के अंतर्गत मार्जारी न्याय और मरकट न्याय का जो स्वरूप है शरणागति के लिए, उसके लिए आगे के इतना तारतम्य बताने के बाद अभी उस स्वरूप में कैसे जीव को शरणागति प्राप्त होती है और वैसे ही पुष्टि भक्ति में कहाँ पर कैसे मरकट न्याय और मार्जारी न्याय का स्वरूप है वो बता रहे हैं कि रामानुज संप्रदाय के अनुसार या उन्होंने ये जो एक प्रकार से फिलॉसफी प्रपोज की हुई है कि जीव जब भी अपने प्रयत्न से शरणागति कर रहा है तो उसके मरकट न्याय के दृष्टांत से बताया कि जिस प्रकार से मरकट का बालक अपनी माता को चिपक कर जब वो स्वयं झाकर अपने शरणागत होता है और फिर माता उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, तो वो मरकट के दृष्टांत से जो शरणागति सिद्ध हो रही है वो जीव प्रयत्न से हो रही है एक प्रकार से।
और दूसरी तरफ जो मार्जारी न्याय है, जहाँ पर भगवान द्वारा सिद्ध होती जो शरणागति है, जहाँ पर बिल्ली का दृष्टांत है कि बिल्ली ही स्वयं अपने बालक को खुद मुंह में लेकर जहाँ पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो वहां पर लेकर जाती है। तो उस प्रकार से वो जो स्वरूप वहां पे बताया गया है उसे पुष्टि भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत या संप्रदाय संबंध से अगर विचार ना हो तो वहां पर भी शुद्ध और मिश्र पुष्टि के भेद से दो प्रकार से, जैसे ये दोनों न्याय है तो उन दोनों प्रकारों में जीव के अधिकार अनुसार वापस तारतम्य आ रहा है। तो उसमें आगे फिर ये बता रहे हैं कि प्रभु जब अपने में भगवत भक्ति रूप शरणागति प्रकट करना चाहते हैं या प्रभु स्वयं जब जिस जीव को फलोन्मुक्ता प्रदान करते हैं तभी उस समय उसे शुद्ध पुष्टि रूपा जानवी मर्कट न्यायतया, और कभी अपने खुद के प्रयत्न से ही प्रभु कहीं पर उसे प्रकट कर रहे हैं पर वो मुक्ति पर्यावसायिनी बन रही है मर्यादा रूपा, वो भी मार्जारी न्याय से ही प्रभु वैसा मर्यादा जीव के लिए कर रहे हैं। इसलिए शुद्ध पुष्टि को जो प्राप्त है वो इस प्रकार से मार्जारी न्याय से समझ सकते हैं। आगे फिर मर्कट न्याय के अंतर्गत जो मिश्र पुष्टि जीव है उनके लिए ये बता रहे हैं कि मिश्र पुष्टि में जो जीव अपने प्रयत्न से प्रभु की शरणागति स्वीकार रहा है वहां पर जो तीनों भेद है, पुष्टि मर्यादा, पुष्टि प्रवाह और पुष्टि पुष्टि, उसमें उस शरणागति का जो स्वरूप प्रकट हो रहा है उसमें वैसे ही थोड़ा थोड़ा तारतम्य आ रहा है। वहां पर जब पुष्टि मर्यादा जीव है वो अपने प्रयत्न से इसे कर रहा है तभी वो जो शरणागति है वो उसके अंगतया बन रही है उसकी साधना में प्रभु भक्ति के साथ। उसी तरह से जब पुष्टि प्रवाह जीव उसे कर रहा है तो वो उसके करणतया या उसकी क्रियाएण परायता जो मानसिकता है उसके साथ वह उसे एक तरह से जोड़ रही है। और जो पुष्टि पुष्टि जीव है उसमें वह लिंगतया बन रही है, मतलब स्फुटतया उसकी भक्ति के साथ उसके आउटकम में उसे और उभार रही है। तो उसी को दृष्टांत में बताने के लिए वहां पर जीजे ने जो अग्नि और धुआं का दृष्टांत है वहां से बता रहे हैं कि जैसे पर्वत पे या कहीं धुआं दिख रहा हो तो अग्नि का जैसे अनुमान होता है और वैसे वो जो धुआं है वो ही एक लिंगतया बनकर अग्नि का अनुमान देता है। वैसे ही यहाँ पर शरणागति भी कभी अंगतया, कभी करणतया, कभी लिंगतया उस प्रकार से उस जीव में प्रकट होती है। आगे फिर उसके बाद इसी यद्यपि ये तो एक प्रकार से कैसे मार्जारी न्याय मर्कट न्याय का समाविष्ट शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि में होता है वो बताने के बाद एक अपातया या प्रभु के प्रमेय बलतया उसके अंतर्गत भी आते एक दूसरे तारतम्य को आगे बता रहे हैं कि भागवत जी के एक प्रमाण वचन देने के बाद ये बता रहे हैं कि कभी कभी प्रभु की भी इच्छा से ये भी शक्य है कि जो शुद्ध पुष्टि जीव है उसको कभी प्रभु मार्जारी न्याय से शरणागति भी प्राप्त करवा देते हैं और कभी कभी ये भी शक्य है कि प्रमेय बल के कारण जो मिश्र पुष्टि जीव है उसको भी प्रभु अपनी इच्छा से जिस प्रकार से शुद्ध पुष्टि को जो प्राप्ति दे रहे हैं वो मिश्र पुष्टि को भी दे सकते हैं। वहां पर दृष्टांत बता रहे हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता में अंबाला गांव के नारायण दास जी की वार्ता प्रसंग है कि वहां पर महाप्रभु जी ने उन्हें ये बताया कि उनसे स्वरूप सेवा तो नहीं पाएगी, इसलिए उसके बदले उन्हें जो दीक्षा मंत्र है वो पधरा कर उन्हें दिया और ये कहा कि सेवे स्वरूप की सेवा न निभ सके इसीलिए ये पंचाक्षर मंत्र पधरा कर दे रहा हूँ और जो कुछ भी लेना वो इन्हें भोग करके लेना। मतलब वहां पर टेक्निकली भक्ति और सेवा के अनुकल्पतया उन्हें महाप्रभु जी ने ये प्रकार बताया और उसी से उन्हें प्रमेय स्वयं के प्रमेय बल से फलदान भी करवाया। और वैसे ही यहाँ पर भी जो पूर्व का प्रसंग है उसमें ऐसे अनुकल्प या विकल्पतया कभी कभी शरणागति से भी स्वरूप पर्यवसायिनी भक्ति बन सकती है और वही जीव के तारतम्य अधिकार के तारतम्य से शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि जीव को प्राप्त हो सकती है।
इतना विवेचन मूलतः जीव की शरणागति किसे कैसे प्राप्त होगी और कैसे स्फुरित होगी वो बताने के बाद अभी जो षड्विध शरणागति के अंग है जो यहाँ पर बताए गए हैं उसको गीता जी के जो वचन है जहाँ पर उपद्रष्टा अनुमंता आदि 6 प्रकार भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा वो जो 6 प्रकार वहां बताए हैं और साथ ही में भागवत जी का भी जो वचन है कि मन इंद्रिय अंतकरण आदि यही 6 अंगों के साथ सर्वांगतया जब शरणागति जीव करता है तभी ही उसे वह सिद्ध होती है। तो अभी ये यूनिक तरीके से जो यहाँ के षडंग है और प्रभु गीता जी के जो 6 प्रकार वहां बताए गए हैं और जीव की मन इंद्रिय आदि की जो 6 स्थिति है उसकी सर्वांगता समर्पण से कैसे उभर कर शरणागति सिद्ध होती है उसका जे 1-on-1 एग्जाम्पल देते हुए उसे आगे के पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि वहां पर प्रथमतया उपद्रष्टा में जीव जो भी कार्य कर रहा है चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे सद हो चाहे असद हो वह सभी कार्यों में प्रभु तो हर एक जो जीव के अंतर्गत अंतर्यामी तरह विराज कर उसे देख ही रहे हैं प्रभु उसके उपद्रष्टा है ही। तो उस प्रकार से जब जीव को शरणागति के अंतर्गत ये भाव आ जाएगा कि जो भी वो विषय भोग कर रहा है वो भगवत प्रतिकूल कभी भी वो विषय भोग ना हो और ऐसे दीन भाव रखते हुए वो सभी प्रकार की अपनी क्रिया वगैरह करे तो इससे जाके जो प्रथम पक्ष है अनुकूल से संकल्प तो वो सिद्ध होगा। इसलिए जीव जब जाके प्रभु को दृष्टा मानते हुए कोई प्रतिकूल कार्य ना करे तो वो उसकी शरणागति का अनुकूल से संकल्प का पक्ष निभर कर आएगा। फिर आगे दूसरा जो अनुमंता का पक्ष है वहां पर जैसे पहले पक्ष में प्रभु हर वस्तु के दृष्टा बन रहे हैं उसी तरह सुख दुख सद असद अच्छा बुरा जो भी कार्य हो वहां पर कोई प्रकार से एक सीधी रोक टोक के बिना अंतकरण से वो प्रभु जान ही रहे हैं पर फिर भी वो जीव उस हर क्रिया को कर रहा है और एक प्रकार से अंतर्यामी की उसे अनुमति भी हर वो क्रिया में मिल ही रही है। तो वहां पर जब वह अनुमंता बन रहा है मतलब जब प्रभु अनुमंता है तो जीव को अपने जो भी उसका कार्य है वो प्रभु को अपने मन में उस कार्य के अनुमंता जानते हुए वो कार्य जो वो करे या वो जो भी कर्म करे वो किसी भी प्रकार से प्रतिकूल ना हो और वो प्रभु को अनुकूल हो वैसा ही वो कार्य करे या कर्म करे जिससे जाकर जो दूसरा पक्ष है प्रतिकूलस्य वर्जनम वो पक्ष उसका सिद्ध होगा। तो जो वो मन में उसका यह संकल्प दृढ़ होगा कि वो अप्रतिकूल कार्य ही करेगा तो उससे अनुमंता पक्ष की शरणागति उसकी निभर कर आएगी। तीसरा भर्ता का पक्ष है कि जो सामान्यतः आगे भी बात आई कि अन्याश्रय त्याग और भर्तृत्व वर्ण वो दोनों एक तरह से सामंजस्य लग रहा है। तो यहाँ पर उसी को एक्सटेंशन में बात आ रही है कि जो भी शरणागत जीव है उसको प्रभु को ही दृढ़तया से अपना भर्ता या अपना स्वामी जानना है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो निश्चिततया अन्याश्रय आदि का दोष वहां पर आएगा और प्रभु का जो भक्तित्व भाव है वो खंडित होगा। और वहां पर एक सामान्य दृष्टांत बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई पतिव्रता स्त्री होती है वो जो भी अपनी अपेक्षा होती है वो अपने पति से ही रखती है इसी प्रकार जीव को भी हमेशा प्रभु को ही अपना भर्ता मानना है और वही उसका स्वरूप भर्तृत्व का प्रकट करेगा। उसके बाद चौथा भोक्ता का पक्ष आता है कि सर्व जो भी वस्तुएं हैं उसके भोक्ता प्रभु स्वयं है और जीव को शरणागत होकर जो भी वो प्राप्त कर रहा है उसे भगवत प्रसाद के रूप में ही उसे भोग करना है या उसे भगवत प्रसाद के रूप में जानकर उसका उपभोग करना है।
वहां पर एक शंका आ रही है कि संप्रदाय के अंतर्गत जो सेवा अंतर्गत जो जीव है उसके लिए तो ये शक्य है, पर जो शरणागत जीव है उसके लिए ये भोग का प्रकार कैसे सिद्ध हो पाएगा। तो उसके उत्तर में साधन दीपिका का वचन यहाँ पर बता रहे हैं कि साधन दीपिका में जैसे श्री गोपीनाथ जी ने सप्तधा भक्ति का वर्णन किया है, तो वहां पर पूजा प्रकार से भी सप्तधा भक्ति करते हुए दास्य और आत्मनिवेदन के स्वरूप से अन्यथा जो श्रवण कीर्तन वगैरह सप्तधा प्रकार से वो पूजा प्रकार में भी वह निर्वाह निश्चित तरह प्रेम से कर सकता है और प्रभु का प्रसादी ग्रहण कर सकता है। और उसकी और क्लासिफिकेशन में ये खास करके और ये बात आ रही है कि यहाँ पर ये जो भोक्ता की बात है वो मात्र भोग्य खाद्य पदार्थ से ही नहीं है, पर हर एक क्रिया है, हर एक मनोभाव है, उन सभी में प्रभु को वह भोक्ता मानना और प्रभु के प्रसाद से वह प्राप्त है, जो प्राप्तम सेवित निर्मम का स्वरूप है, वो समझकर उसे दृढ़ विश्वास से प्रभु उसके लायक जो होगा वो उसे प्रदान करेंगे, ये भाव रख के उसे वहां पर भोक्ता का स्वरूप सिद्ध हो रहा है। ये चौथा प्रकार देखने के बाद पांचवा महेश्वर के बारे में बात आ रही है कि वहां पर प्रथम ये बता रहे हैं कि जीव को कभी कभी अज्ञानवश ये उसकी स्थिति होती है कि उसे जो भी भोग प्राप्त हो रहा है उसमें वह स्वयं उसका भोक्ता है, पर वहां पर भी गीता जी के वचन से, उसे प्रमाण वचन से ये सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा मानना वो जीव का निश्चिततया अज्ञान है। और शरणागत जीव को हमेशा कोई भी अनुष्ठान कर रहा हो, कोई भी कर्म कर रहा हो या उसे कोई भी फल जो प्राप्त है वो महेश्वर द्वारा उसे प्राप्त है, और सभी के ईश्वर या सभी के ईश्वरों के भी ईश्वर प्रभु स्वयं है, इसलिए प्रभु ने उसे वह अनुष्ठान कर्म और फल प्राप्त करवाया है। ऐसी दीनता और कार्पण्य बुद्धि से उसे वह कार्य या उसे वह कर्म फल आदि प्राप्त हो रहा है। ऐसे महेश्वर बुद्धि से कार्पण्य का भाव सिद्ध रखते हुए उसे जानना है। और अंत में परमात्मा तया प्रभु का छठा स्वरूप शरणागति के अंतर्गत बता रहे हैं कि प्रभु का जो स्वरूप है उसे उस जीव को स्वयं प्रभु ही उसके आत्मा रूप है, या जो प्रभु ही उसे सबसे प्रिय है, वैसे जानकर प्रभु को परमात्मा मानना है। वहाँ पर भागवत जी का प्रमाण वचन दे रहे हैं कि जीव को अपना देह प्रिय इसलिए लग रहा है क्योंकि उसे अपनी आत्मा प्रिय है, और आत्मा में भी प्रियता इसके लिए है कि वहाँ पर उसे परमात्मा की प्रियता आत्मा को है। इसलिए उस प्रकार से जो भी दृढ़ शरणागत जीव होगा उसे जो प्रियता जो लगेगी वह अपनी आत्मा में लगेगी, और वो भी इस कारण लगेगी क्योंकि उसे प्रभु में प्रियता है। इसलिए एक प्रकार से उसकी जो शरणागति है वो आत्मनिवेदन के रूप में सिद्ध होकर उभर कर आएगी। वहाँ पर खाली एक खुलासा के रूप में एक यह पक्ष बताया गया है कि ऐसी आत्मनिवेदन के भाव रूप शरणागति का जो ये पक्ष है, वो जो आत्मनिवेदन से भक्ति का पक्ष है उससे थोड़ा तारतम्य वहाँ ऐसे रहता है कि भक्ति के पक्ष अंतर्गत उसे सेवा समर्पण विनियोग आदि स्वसेव्य के रूप में प्राप्त है, पर यहाँ पर शरणागति में वह मुख्यतया भाव के रूप में है। तो इस प्रकार से ये जो 6 अंग है वो यहाँ पर सामंजस्य बताया, और अंत में ग्रंथ के अंत में ये बता रहे हैं कि कैसे उत्तम अधिकारी को ये लिंगतया ये स्फुरित होते हैं, मध्यम अधिकारी को अंग रूप में यही 6 शरणागति के पक्ष सिद्ध होते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी में ये करण रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि विस्तृत और सुंदर टीका संपन्न होती है, और आप श्री के सानिध्य से हम इसे पढ़ पाए वो भी एक अलभ्य अवसर था। इतना राजा यहाँ पर इस अंत के 2 श्लोकों में समझ में आया। प्रणाम। चलो, बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ, और हमने एक बार अध्ययन भी किया और आप सबने पुनरावर्तन भी कर दिया, तो ये विषय
सांगोपांग संपन्न हुआ। आज का विषय हम यहाँ रखते हैं और कल से हम शिक्षा श्लोका प्रारंभ करेंगे। उसके ऊपर भी श्री श्यामकाका जी की ही टीका है, तो वो ग्रंथ से हम कल प्रारंभ करते हैं। आज यहाँ रखते हैं।